جنوبی کشمیر میں غیر ریاستی باشندوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع شوپیاں کے چتراگام علاقے میں ملیٹنٹوں نے غیر مقامی ٹرک ڈرائیوروں پر ایک اور حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ ملیٹنٹوں نے اس وقت انجام دیا جب چتراگام علاقے میں 3 ٹرکوں میں سیب کی پیٹیاں بھری جا رہی تھیں۔ اس حملے میں 2 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ ایک ڈرائیور کو شدید زخمی حالت میں سری نگر اسپتال منتقل کیا گیا۔ ملیٹنٹوں نے ٹرکوں کو بھی نظر آتش کیا۔ اس سے ٹرکوں کو کافی نقصان ہوا ہے۔ حملے میں مارے گئے ڈرائیور اور کنڈکٹر کی شناخت الور راجستھان کے ڈرائیور الیاس خان اور کنڈکٹر بھرت پور کے زاہد خان کے طور پر ہوئی ہے۔ زخمی ڈرائیور کی شناخت ہوشیارپور پنجاب کے جیون سنگھ کے طور پر ہوئی ہے۔ اس حملے میں مارے گئے افراد کی لاشوں کی قانونی لوازمات پورے کر کے ان کے آبائی علاقوں کی جانب روانہ کیا گیا۔ واضح ہے کہ حالیہ دنوں شوپیاں ضلع میں پہلے بھی ایک ٹرک ڈرائیور، ایک میوہ تاجر اور پلوامہ ضلع میں ایک غیر ریاستی مزدور کو ہلاک کیا گیا ہے۔ شوپیاں کے چتراگام علاقے میں حملے کے بعد گزشتہ شام سے ہی سیکیورٹی فورسز نے بڑے پیمانے پر حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ چتراگام اور اس کے ملحقہ دیہات میں گزشتہ شام سے ہی محاصرہ کر کے تلاشی کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ اس حملے کے بعد چتراگام اور اس کے ملحقہ علاقوں میں کافی خوف پایا جا رہا ہے۔ ضلع شوپیاں کے چتراگام علاقے میں حملے کے بعد شوپیاں میں موجود غیر مقامی ٹرانسپورٹرز اور میوہ تاجروں میں کافی خوف پیدا ہو گیا ہے۔ غیر مقامی ٹرانسپورٹرز کے لیے حکومت نے محفوظ مقامات بھی قائم کیے تھے۔ ضلع کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی کو بھی بڑھایا گیا ہے۔ تاہم حملے کے بعد بھی ضلع شوپیاں کے اگلر علاقے میں قائم فروٹ منڈی میں نیفیڈ کے ذریعے سیب کا کاروبار چل رہا ہے۔ اس حملے کے بعد ٹرانسپورٹرز میں کافی خوف کا ماحول ہونے سے کاروبار متاثر ہونے کا خدشہ لاحق ہو گیا ہے۔ تو سب کو لگتا ہے جی ہم پردیسی آدمی ہیں، ادھر روزی روٹی کے لیے آئے ہیں۔ سنا ہے رات چترا گاؤں میں 2-3 گاڑیاں کو آگ لگا دی ہے، اس کے چکر میں ہم بھی ادھر ڈر محسوس کر رہے ہیں جی۔ کشمیر تو ہم 10 سال سے ادھر آ رہے ہیں جی، تقریباً گاڑی لے کر۔ تو جو آج ہو رہا ہے ایسا ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، کیونکہ آج تک کسی ڈرائیور کو کبھی کسی نے کچھ بھی نہیں بولا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگوں کا کیسا آپ کے رول ہے؟ جو ادھر کے لوگ ہیں جی وہ تو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بہن بھائی کی طرح ہیں جی۔ اگر ہم کسی گاؤں میں رکتے ہیں تو ہمیں کھانا بھی ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے جی۔ وہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ ہمیں کچھ نہیں بولتے جی، وہ ہماری حفاظت ہی کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پردیسی آدمی ہیں، ان کے اوپر اتیاچار نہ ہو تو ہمیں سیف ہی رکھتے ہیں۔ مگر جو ادھر ہو رہا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے جی۔ سیکیورٹی تو ہے مگر آتی ہے پھر وہ چلے جاتے ہیں، وہ ان کی تو ڈیوٹی ہے جی، وہ آتے جاتے رہتے ہیں جی۔ آج صبح سے لگی ہوئی ہے ادھر سیکیورٹی۔ بالکل بے فکر ہو کے آتے تھے، بالکل بے فکر ہو کے جاتے تھے، لیکن اس سال سے جو ہے بہت ڈر لگ رہا ہے، مطلب ڈر ڈر کے آتے ہیں، ڈر ڈر کے جاتے ہیں۔ بس یہ ہے، جو کشمیری لوگ ہیں جیسے بھیا بتا رہے ہیں کہیں گاؤں میں رکتے ہیں، وہ تو یہ سمجھ لو کہ مہمان کا درجہ دیتے ہیں ہم لوگوں کو۔ انہی کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ بھی مطلب گاؤں میں رکے ہیں ہم، انہوں نے فل مہمان کا درجہ دیا ہے ہمیں۔ ضلع شوپیان کے چتراگام علاقے میں گزشتہ شام کو پیش آنے والا ملیٹنٹ حملہ اپنی نوعیت کا تیسرا ایسا حملہ ہے جس میں غیر مقامی باشندوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پہلے ہوئے حملوں کے بعد اگرچہ ضلع شوپیان میں سیکیورٹی کو سخت کیا گیا تھا اور سیب کی لوڈنگ کے لیے سیب پیسیج بنایا گیا تھا، تاہم جمعرات کی شام کو ہونے والے اس حملے کے بعد غیر مقامی ڈرائیوروں اور میوہ تاجروں میں ایک بار پھر خوف پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ضلع شوپیان میں چل رہا سیب کا کاروبار ایک بار پھر متاثر ہو رہا ہے۔ بلال خان، نیوز 18 اردو، شوپیان۔ مختلف سیاسی لیڈران نے شوپیاں میں غیر ریاستی ٹرک ڈرائیوروں پر حملے کی مذمت کی ہے۔ جموں کشمیر کانگریس نے اس سلسلے میں مرکزی حکومت پر بھی تنقید کی۔ جموں کشمیر بی جے پی نے کہا کہ فورسز کشمیر میں پاکستان کی حمایت یافتہ ملیٹنسی کا بخوبی مقابلہ کر رہی ہیں۔ یہ بہت ہی نندنیہ بات ہے اور بڑی سخت مذمت ہم کرتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ گمبھیر چنتا کی بات ہے کہ ایک طرف اتنی سیکورٹی پریزنس ہو، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ چڑیا بھی جو ہے وہ ہل نہیں سکتی، کہ الیکشن تھے، آپ نے تمام جو ہے وہ نظر رکھی ہوئی تھی، اس کے باوجود اس طرح کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں۔ لگاتار روز روز جو ہے وہ ٹرکرز پہ، فروٹ گروورز پہ، مزدور پہ وہاں کہیں نہ کہیں واردات کرنے میں وہ سکشم ہیں۔ آپ تو آل آؤٹ کہتے تھے، ہم سیکورٹی فورسز کی اتنی قربانیوں کے بعد بھی اگر آتنکواد اتنا وہاں پہ ہے اور پاکستان کی طرف سے بھی اتنی سمرتھن ہے کہ
कि LOC से आप खुद दावे करते हैं, तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक से क्या ख़त्म किया? कौन से लॉन्चिंग पैड और आतंकवादी कैंप ख़त्म हो गए कि क्यों इतने जो है वो वहाँ पे कैंप फिर चल रहे हैं? आज खुद दावा करती है सरकार। कश्मीर घाटी के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने एक बार फिर खूनी खेल खेला है। ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर पाकिस्तानियों ने हमला किया, 2 ट्रक ड्राइवर्स की हत्या कर दी गई। यह बहुत ही निंदनीय है। लगातार सेना कश्मीर के अंदर इस समय आतंकवाद विरोधी अभियानों में तेजी लाकर आतंकवादियों का सफाया कर रही है। यहां कुपवाड़ा के अंदर पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा में जब घुसपैठ करने की, आतंकवादियों को भेजने की एक कोशिश की, भारतीय सेना ने घुस के लीपा और नीलम वैली में आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड्स डिस्ट्रॉय किए। आतंकवादियों को मौत के घाट चुन चुनकर उतारेंगे। आतंकवादियों के प्रति कोई दया भावना नहीं होगी। जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जनूबी कश्मीर में स्कूली इमारतों को नजर आतिश करने का सिलसिला भी जारी है। जिला कुलगाम में गुज़श्ता रात नामालूम अफराद ने चौलगाम में कायम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की इमारतों को आग लगाने की कोशिश की। इस सिलसिले में 2 इमारतों को जज़वी नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड अमले की बरवक्त कार्रवाई से आग को फैलने से रोका गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह के हालिया दिनों वटू कुलगाम और जिला पुलवामा में भी ऐसी ही वारदातों में सरकारी स्कूलों की इमारतों को नजर आतिश किया गया। इन वाकयात को देखते हुए इंतजामिया और पुलिस लाएमल मुरतब कर रही है। हालात के चलते जिला कुलगाम में स्कूल जलाने की कोशिशें जारी है और इस हवाले से हम आपको बताएं कि गुज़श्ता दिनों वटू कुलगाम के इलाके में एक हाई स्कूल को जलाने की कोशिश की गई थी, जिसको जज़वी नुकसान हुआ। और गुज़श्ता शब जो है चवलगाम कुलगाम के इलाके में कायम मिडिल स्कूल की 2 इमारतों को भी नुकसान हुआ है। इन्हें भी आग लगाने की कोशिश की गई है। हालांकि आग बुझाने वाले अमला ने बरवक्त कार्रवाई की और दोनों स्कूलों की इमारत को बचा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने FIR दर्ज की है और मामले की तहकीकात हो रही है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर सूरत हाल काबू में है। श्रीनगर समेत कई इलाकों में दफा 144 मुसलसल नाफिज है। श्रीनगर के डाउनटाउन समेत वादी के कई इलाकों में आज जुमे के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। डाउनटाउन में चंद एक मकामात पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। अमन और कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए चंद एक जगहों पर खारदार तार भी बिछाई गई थी, ताहम लोगों की नक्ल हरकत पर कोई पाबंदी नहीं थी। जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा नहीं हो पाई। उधर दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे लगातार बंद हैं। श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर सुबह के औकात कई दुकानें खुली रहीं। आज निजी गाड़ियों की नकल हमल में थोड़ी कमी देखी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बराबर मअतल है। प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद है। इस बीच बटमालू श्रीनगर में गुज़श्ता रात आग की एक वारदात में 7 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई हैं। इब्तदाई जांच में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह बताया गया है, ताहम दुकान मालिकान ने इसे मुस्तरद किया है। इनका कहना है कि नामालूम अफराद ने इनकी दुकानों को नजर आतिश किया है। जिला गांदरबल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तिजारती सरगर्मियां बंद रहने से मामूलात जिंदगी मुतासिर है। कस्बा गांदरबल में दुकानें, कारोबारी और तालीमी इदारे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। अगरचे स्कूलों को खोलने के अहकामात पहले से ही जारी हैं, ताहम तलबा की हाजिरी 0 के बराबर है। तदरीसी और गैर तदरीसी अमला ताहम स्कूलों में मौजूद है। जामा मस्जिद गांदरबल में नमाज जुमा अदा नहीं हो पाई। अमन और कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए जिला भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम रहे। जिले में कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया है। जिला कुलगाम के तहसील सदर मकामात और कस्बजात में आज जुमे के पेश नज़र मुकम्मल बंद रहा। निजी ट्रांसपोर्ट आज भी बराबर सड़कों पर नजर आया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल मुअत्तल है। जिले की अहम राब्ता सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई थी। जिले में आज हालात काबू में रहे। अनंतनाग में मजमूई तौर पर सूरत हाल काबू में रही। जुमे के पेश नज़र जिला अनंतनाग में हिफाजती इंतजाम सख्त किए गए थे, ताहम आज अनंतनाग में कहीं पर भी बंदिशें आयद नहीं की गई थीं। सड़कों पर निजी आमदरफ्त जारी था, वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रहा। दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे और रेल खदमात भी मुअत्तल रहीं। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके टंगार में गुज़श्ता शब पाकिस्तान की जानिब से शदीद गोलाबारी की गई। इसकी वजह से इलाके में जानी व माली नुकसान हुआ। एक खातून की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन के करीब लोग जख्मी हो गए। जख्मियों में एक 12 साल तालिबा भी शामिल है। जख्मियों को कुपवाड़ा और श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया।
न्यूज़ 18 टीम ने रात भर मुख्तलिफ अस्पतालों में जाकर सूरत-ए-हाल की अक्सबंदी की। लोगों का कहना है कि गोलाबारी की वजह से वो अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं। पूरे इलाके में लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। लोगों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो बातचीत का अमल शुरू करें और सरहद पर एक बार फिर जंगबंदी का माहौल कायम किया जाए। पेशेंट लेके शेलिंग वाले पेशेंट हैं, दोनों सीरियस जख्मी हैं। एक को तो बाजू कटी हुई है, दूसरी को भी शेल लगा हुआ है। वहाँ पर आज भी चल रही है इस वक्त? जबरदस्त फायरिंग चल रही है अभी भी। अस्पताल पे और कोई पेशेंट है? एक तो वहाँ एडमिट भी है, एक तो डेड बॉडी है उधर ही। कितने बजे हुआ तकरीबन? ये 12 बजे से चल रहा है सर, कंटिन्यू 5 साढ़े 5 तक तो कंटिन्यू। पिछले 1-2 दिनों से लगातार चल रहा है? जी सर। कुपवाड़ा जिले के केरन में गुज़श्ता शब पाकिस्तानी गोलाबारी से दर्जनों अफराद जख्मी हो गए हैं। उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। पहली बार कुपवाड़ा जिले के चौकीबल, रेडी तमना और दीगर इलाकों में शेल गिरे। इसके बाद कई मकानों को नुकसान पहुंचा। धमाका इस कदर शदीद थे कि पूरा जिला दहल उठा। लोग रात भर नकल मकानी कर रहे थे। शदीद गोलाबारी से इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार इंतहाई परेशान हैं। न्यूज़ 18 टीम ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। लोगों ने दोनों ममालिक से अपील की कि सरहदों पर अमन कायम किया जाए ताकि वो अपनी जिंदगी आराम से बसर कर सकें। रात आज शाम लगभग 7:30 पे गोल ये लाइन नमी साइड पे सरसे नम बच्चे आंगनस मज गई जख्मी बेस गम लेडीज जख्मी रूद रात हुशार हर हमेशा अथ डरस मज रोजान कि खुदा रचन कुन तो कुन गई नुकसान गवर्नमेंटस गुजारिश करान कि अगर सह मदद ते कर मगर मान तो सस अयालस कहें अस कर नुकसान ज्यादा ये कहें खुदा रा कर हिसाब किताब कर रोकथाम ग लोग जबरदस्त खौफ में आके यहाँ तो एक दूसरे के घर चले गए खौफ की वजह से। यहाँ बेचारे इतने परेशान हो गए कि उनके कोई सुकून ही नहीं रहा। और गुजारिश है कि इस शेलिंग में करीबन 7 से 8 लोग जख्मी हो गए जिनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। गवर्नमेंट से हम गुजारिश करते हैं कि पहले फिलफोल इन लोगों को कुछ मुआवजा दे दीजिए जिनके नुकसान घर तबाह हो गए कि फिलहाल जो ये क्योंकि सर्दी का मौसम आने वाला है इनके लिए कुछ ऐसे इंतजाम करके कि ये अपने रात कहीं पे गुजार लेंगे। मकान भी पूरा तोड़ फोड़ हो गया, वो गाय खाना था वो भी तोड़ फोड़ हो गया, बाथरूम बनाया था वो भी तोड़ फोड़ हो गया, सब कुछ हो गया। समझ नहीं आती है। यहाँ बोलते हैं मुझे कश्मीर चाहिए, वहाँ बोलते हैं हमें कश्मीर चाहिए। जमीन का सोचते हैं और हम गरीबों का कोई कुछ भी नहीं सोचता है। हम चाहते हैं गोलाबारी बंद होनी चाहिए, कोई फैसला अच्छा होना चाहिए जो हमारे हक में होना चाहिए। जख्मी बिल्कुल वो जख्मी है, वो आता है, वो इस वक्त हंदवाड़ा में शिफ्ट किया है। रात को बोल रहे थे श्रीनगर में शिफ्ट करो, लेकिन हम नहीं उसको शिफ्ट कर सके, इसलिए पैसा नहीं था। गरीब बंदा है, उसी वक्त मजदूरी करके आया था, फिर हमने करालपुरा में उसे ड्रेसिंग की। सरहदों पर हिंद पाक गोलाबारी की वजह से सबसे ज्यादा खमियाजा सरहदों पर रहने वाले आम गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इन गरीब लोगों के आशानिये टूट फूट के शिकार हो जाते हैं। जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान भी हो रहा है। दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। एक खातून की आज एक बार फिर मौत वाकया हो गई। और इस वक्त जहां पर हम बैठे हैं इस आशाने का हर जगह नुकसान हो चुका है और इनके दर्जनों अफराद जो है वो जख्मी श्रीनगर या दूसरे अस्पतालों में इस वक्त जेर इलाज हैं। इनका कहना है कि इनकी स्कूल के बच्चों की तालीम पर भी असर पड़ रहा है। आने वाले वक्त में इम्तिहानात आ रहे हैं, इनके बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। रात दिन ये इसी तजब्जुब में रहते हैं कि कब गोला गिरे और कहां गिरे और किस जगह गिरे और किसकी मौत वाकया हो जाए। लोग हिंद पाक क़यादत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि वो आपस में बातचीत से तमाम मसाइल को हल करें ताकि आर पार अमन की हवाएं चले। याया सुल्तान, न्यूज़ 18 उर्दू, कुपवाड़ा। कठुआ में हीरानगर सेक्टर के मनियारी गांव में पाकिस्तान ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। इसमें एक शख्स के 2 मवेशी हलाक जबकि एक जख्मी हो गया। पाकिस्तान ने फौजी चौकियों समेत रिहायशी इलाकों पर बिलाश्तियाल गोलाबारी की। वाज़ेह है कि पाकिस्तान लगातार कई महीनों से सरहदी इलाकों में गोलाबारी कर रहा है। गोलाबारी में खुसूसन रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। इसकी जद में अगर आकर काफी जानी व माली नुकसान हुआ है। हीरानगर में पाकिस्तान की बिलाश्तियाल गोलाबारी से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि वो रोज बरोज की इस गोलाबारी से परेशान हो गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने का हुकूमत से मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने सियासी नुमाइंदों के तई भी अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि कोई भी उनका हाल पूछने नहीं आता।
इस दौरान हीरानगर के SDM सुरेश कुमार ने हालात का जायजा लिया। उन्होंने मकामी लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। बहुत नुकसान हो चुका है, 2 भैंस मार चुकी है मौके में, एक जख्मी है। 77,000 रुपया की कीमत है। 1 महीना हुआ इधर पूरी लगातार फायरिंग हो रही है। हमारी मदद करी जाए, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से हमारा परिवार है ये, हम भैंसों का दूध बेच के हम गुजारा करते हैं। हमको कोई नौकरी नहीं है, हमके पास कुछ नहीं है, हम भैंसों को दूध बेच के गुजारा करते हैं। पाकिस्तान को जवाब दिया जाए तो जवाब दिया जाए। जहां लगातार फायरिंग हो रही है और लगातार नुकसान हो रहा है। पिछले हफ्ते में भी हमारे 2 कुल्ले जल गए थे और काफ़ी नुकसान हो गया। इस बार पिछली रात बीती हुई जो 2 भैंसें मर चुकी है, 1 जख्मी हो चुकी है। ये तो नुकसान हमारा हम झेल ही रहे हैं दिन रात। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इनको भी थोड़ा रिलैक्सेशन दी जाए। यहाँ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से यहाँ हमारे मक्खन दीन जी हैं, उनके 2 जानवरों का नुकसान हो गया है और साथ में एक उनका जो बैफलो है वो इंजर्ड हो गया है। तो उसमें रेवेन्यू टीम और वेटरनरी टीम जो है मौके पे आई है और वो केस बनाएगी। उस हिसाब से इनको रिलीफ जो है वो दे दिया जाएगा। तो एक इनका एनिमल जो है वो इंजर्ड है, जिसकी ट्रीटमेंट के लिए हम उसको अच्छी ट्रीटमेंट के लिए RSपुरा वेटनरी हॉस्पिटल में भेज रहे हैं। इसमें हम बैठ के BSF अथॉरिटीज़, पुलिस और लोगों से मिलके डिसाइड करेंगे किस डेट से ये जो है वो उनका फसल का जो है काटना शुरू होता है, तो उस हिसाब से हम जो है वो कर लेंगे इसको। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में BDC इंतखाबात में कामयाब हुए अफराद को मुबारकबाद दी है। उन्होंने इंतखाबात के पुरअमन इनकाद पर मसरत का इजहार किया है। ट्वीट करके वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये जमहूरियत के तई लोगों का एतमाद ज़ाहिर कर रहा है। उन्होंने कहा कि इससे ये भी मालूम होता है कि लोग ज़मीनी सतह की गवर्नेंस को कितनी अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा कि इससे नई और नौजवान लीडरशिप उभर कर आई है, जो इलाके में आने वाले वक्त में तामीर और तरक्की में अहम रोल अदा करेगा। उन्होंने कहा कि इस बात से मुल्क के पार्लियामेंट को फख्र होगा कि 5 अगस्त के उसके तारीखी फैसले से रियासत के लोग अपने जमहूरी हक का जोश जज्बे से इस्तेमाल कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि ये अमल तशद्दुद से पाक रहा और 98% पोलिंग भी रिकॉर्ड की गई। मोदी ने पार्लियामेंट के फैसले पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नौजवान और मुतहरिक नुमाइंदे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की तकदीर संवारेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों ने जम्मू कश्मीर में पहली मरतबा मुनक्किद होने वाले ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात में बाजी मार ली है। कुल 307 सीटों में से 217 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों ने अपने नाम कर ली हैं। बीजेपी दूसरे नंबर पर 81 सीटें हासिल करने में कामयाब हो गई। कश्मीर डिवीजन में बीजेपी ने 18 नशिस्तें हासिल कर ली हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों को 109 नशिस्तें मिली हैं। तमाम बीजेपी तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने दावा किया कि बीजेपी एक बड़ी वाहिद पार्टी बनकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने इंतखाबात में जीत हासिल की है और ऐसे उम्मीदवारों की तादाद बेहतर है। इस दौरान बीजेपी ने आज अपने श्रीनगर के पार्टी दफ्तर में कई कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। अल्ताफ ठाकुर ने कहा जम्मू कश्मीर के मकामी पार्टियों और कांग्रेस पर इस इंतखाब में प्रॉक्सी उम्मीदवारों को खड़ा करने का इल्जाम लगाया। वाज़ेह के नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP ने इन इंतखाबात का बायकॉट किया था। यहाँ कहते हैं लोग 18 सीटों पे जीता, आप तो बड़ा जश्न मना रहे हैं, आप तो हारे हुए हैं। देखिए, मैं इस बात को एक सर मुस्तरद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अपने निशान पे 44 जगहों पे अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे और उसके साथ साथ कश्मीर में जैसे भारतीय जनता पार्टी में मोर्चे होते हैं, ऐसे सेलें भी होती है। पंचायत राज सेल जम्मू कश्मीर जो भारतीय जनता पार्टी की एक सेल है, उसके तहत भी हमने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। और जहां तक अभी मुझे आंकड़े मिले हैं, क्योंकि मैं पंचायत राज सेल कश्मीर का प्रेसिडेंट भी हूं, और मैं ऑफिशियली ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे सिंगल पार्टी, बड़ी पार्टी बन के यहाँ उभरी है। और हमने 72 सीट जो BDC की है उन पे जीत हासिल की है और सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, पूरे मुल्क में है, ये क्या आपको मजबूरी पड़ी कि आप आज़ाद उम्मीदवारों को खड़े कर रहे हैं, पार्टी असेंबल पे नहीं लड़ रहे हैं हर जगह? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता कोई अहमियत नहीं रखती है। हमने लाइक माइंडेड लोगों को इसलिए सपोर्ट किया है, हम डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं। भारत देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हम डेमोक्रेसी को फलना फूलना यहाँ देखना चाहते थे। यहाँ जो बैकाट की कालें आ रही थी, चाहे वो सेपरेटिस्ट की तरफ से थी, चाहे मिलिटेंट्स की तरफ से थी, चाहे मेन स्ट्रीम की तरफ से थी, हम इसलिए उनका सपोर्ट कर रहे थे कि हम चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन इस इलेक्शन में हो।
बीजेपी के रियासती नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कश्मीर में बीडीसी इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को मोदी सरकार का एक संगे मील करार दिया है। उन्होंने कहा कि एनसी और पीडीपी ने इंतखाबात के बाइकआउट का एक और ड्रामा रचाया है। सूफी यूसुफ ने कहा कि इन पार्टियों ने इंतखाबात में प्रॉक्सी उम्मीदवारों को खड़ा किया था। अनंतनाग में पार्टी की फातह उम्मीदवारों के इस्तकबालिया के मौके पर सूफी यूसुफ ने बीडीसी इंतखाबात को तामीर और तरक्की की नए दौर से ताबीर किया। है जमहूरियत की, क्योंकि आज पूरे देश की नज़र कश्मीर के ओर थी और आज यहाँ पे पंचों सरपंचों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, अपने कैंडिडेटों को जिताया है। मैं यहाँ के आवाम को आपकी वसादत से मुबारकबाद देना चाहूँगा और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी के भी उस विजन को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत देर के बाद यहाँ पंचायत इलेक्शन किए हैं। एनसी और पीडीपी ने जो बाइकाट किया था, आज उनके कैंडिडेट सामने आ गए हैं। जो प्रॉक्सीज कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए थे, उनके कुछ कैंडिडेटों की भी जीत हुई और मैं आवाम को कहना चाहूँगा कि ये फिर दोहरी पॉलिसी जो है चलाते हैं, आगे इसका ख्याल रखा जाए। और मेरे पास सबूत है कि एनसी का कैंडिडेट कौन जीता, पीडीपी का कैंडिडेट कौन जीता। उन्होंने अपने सिंबल पे उनको खड़ा नहीं किया और उन्होंने मैदान में उनको उतारा इंडिपेंडेंट। बीजेपी को ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात में बड़ा धचका लगा है। कुल 281 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 81 सीटें हासिल कर पाई। आजाद उम्मीदवारों ने किसी बड़ी सियासी पार्टी की गैर मौजूदगी में 217 नशिस्तें अपने नाम करते हुए जबरदस्त कामयाबी हासिल की। जाहिर है ऐसे में अपोजिशन मायूस कुन कारकर्दगी के लिए बीजेपी को तनकीद का निशाना बना रही है। पेश एक रिपोर्ट। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात में बड़ी हिज्ब मुखालिफ पार्टियों की गैर मौजूदगी से बीजेपी को सीटें हासिल करने में कोई मदद नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बीजेपी ने बीडीसी इंतखाबात में मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। वोटर्स की हिस्सेदारी काफी अच्छी थी, ताहम इन इंतखाबात के नताइज ने बीजेपी और हत्ता की दूसरी सियासी पार्टियों को भी चौंका दिया है। बड़ी सियासी पार्टियों कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से मुकाबला न होने से बीजेपी अक्सर नशस्तों पर सफाया करने की ताक में थी। बीजेपी ने कश्मीर, जम्मू और लद्दाख तीनों खित्तों की 281 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, ताहम ये सिर्फ 81 सीटें जीत पाई। जम्मू में मजबूत दावेदार होने के बावजूद तमाम 181 नशिस्तों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, ताहम इसकी झोली में सिर्फ 54 सीटें आईं। अपनी शिकस्त को कबूल न करते हुए जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने पार्टी की साख को बनाए रखते हुए कहा कि जमहूरियत की जीत हुई है। कड़ा मुकाबला था, हर सीट के ऊपर 6-6, 8-8, कई 10-10 कैंडिडेट्स भी खड़े थे। जीत हार जिसकी भी हुई, दो पहलवान जब अखाड़े में लड़ते हैं, किसी न एक की जीत होगी, एक को जीत नहीं देखनी पड़ती है, लेकिन अंतोगत्वा लोकतंत्र की जीत हुई है, जमहूरियत की जीत हुई है, जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी की जीत हुई है। अलगाववादियों की, पाकिस्तानियों की, कांग्रेसियों की, नेशनल कॉन्फ्रेंसियों की और पीडीपी वालों की और हुर्रियत वालों की हार हुई है। आजाद और कई सियासी जमातों की जानिब से खड़े किए गए प्रॉक्सी उम्मीदवारों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 217 सीटों पर जीत दर्ज की है। कश्मीर में इन्होंने 109 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। बीजेपी को सिर्फ 18 सीटें मिली। पैंथर्स पार्टी जैसी छोटी पार्टी को जम्मू में 8 नशिस्तें हासिल हुई हैं। ऐसे में पार्टी की मायूस कुन कारकर्दगी के लिए अपोजिशन पार्टियों को बीजेपी पर तनकीद करने का मौका मिल गया है। बीजेपी 307 में से 81 जीती है। 148 जम्मू सूबे से सिर्फ 52 सीट पे जीती है, जबकि कोई ओपोजिशन पार्टी नहीं थी। ये एक आईना दिखाया है लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को कि आप तो क्लीन स्वीप करने के लिए पार्टी बुनियाद पे आपने चुनाव का घोषणा की, तमाम पार्टी के नेताओं को नज़रबंद करके बंद करके, अभी भी बंद हैं घाटी के अंदर तमाम लोग, और आपने पार्टी बेसिस पे चुनाव कराया और उसका हशर ये हुआ। मैं समझता हूँ
हम उनके साथ हमदर्दी जता सकते हैं, मगर शर्म मुझको मगर आती नहीं। से लोगों ने जवाब दे दिया भारतीय जनता पार्टी को कि आप कहीं नहीं हैं, सिर्फ झूठे वादे और खोखले नारे लगाने से लोगों का पेट नहीं भरता है। 10 महीने से जो पंचायतें थी उनको कुछ नहीं मिला, कोई विकास नहीं हुआ। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि बीजेपी जमीनी सतह के मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर रही। इसकी वजह से पंचायती सतह पर इसके नुमाइंदों को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। ग्रास रूट पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका कि अभी निवारण नहीं हो पा रहा। ऑब्वियसली सरकार सेंट्रल लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा पुरजोर कोशिशें कर रही है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी ग्रास रूट के इश्यूज़ अभी पूरे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। जो मिलिटेंसी का इम्पैक्ट है या जो टेररिज्म का इम्पैक्ट है उसको अभी हम निगेट नहीं कर पा रहे। तो ये सारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ इश्यूज़ की वजह से इस टाइम पे जो पॉपुलेशन है या जो ग्रास रूट पे जो लोग हैं जिनकी अभी BDC इलेक्शंस में जिन्होंने वोट डालना था तो वो काफ़ी सारे डिवाइडेड हैं और हर लोकलाइज्ड इश्यूज़ हैं। हर गांव का अपना इशू है, हर ब्लॉक का अपना इशू है, हर तहसील का अपना इशू है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना इशू उठ रहा है, जिन सबको भी संभालना मुझे लगता है कि अभी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक डाइवर्सिटी है पूरे रीजन में। अराउंड अबाउट 30 to 35% सीटें ही बीजेपी जीत पाई है। पर अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एक्चुअल BDC बनाने का इशू है या जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है कि BDC का क्या रोल होगा और किस तरह से उभर के आना है, तो उसकी जीत हुई है। BDC इलेक्शंस में बीजेपी को ज़्यादातर सीटों पर हार का ही सामना करना पड़ा, जो जाहिर तौर पर पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। हालांकि पार्टी लीडरान इस हार को भी जीत मान रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी ने हार की वजूहात को नहीं तलाशा तो आगे की सियासी राह पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। साबिक जज जफर इकबाल खान ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। जफर इकबाल ने कहा कि दफा 370 का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन मरकजी सरकार इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में कई तरह के बदलाव कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में खवातीन कमीशन को खत्म किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई बदलाव किए गए हैं जिन्हें बाद में वापस लेना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मरकज को ऐसे इक़दाम करने से रोकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस इशू कर दिया और लास्ट हियरिंग को उन्होंने डेट फिक्स भी कर दी, गवर्नमेंट को ये रिस्पांस फाइल करना, ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए 3 हफ्तों का टाइम भी दिया था, उसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट ने लगातार कुछ चेंजेस करना शुरू कर दी। जिस तरह उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म कर दिया, उन्होंने फ्लैग को उतार दिया, उसके बाद ह्यूमन राइट कमीशन को वाइंड अप कर दिया, उसके बाद वुमेन कमीशन को वाइंड अप कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी उसको वाइंड अप कर दिया। प्रोप्राइटरी डिमांड्स ये करती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है तो जब तक के आपको वेट करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला क्या आने वाला है। जब आपने पहले 3 महीने वेट किया है तो अभी 15 दिन और वेट करने से 14 को हमारी तमाम पिटीशंस दोबारा लगी हुई थी। तो प्रोप्राइटरी यही डिमांड करती है कि दे शुड हैव केप्ट देयर हैंड्स अवे फ्रॉम दीज चेंजेस। इसमें अर्जेंसी ये है कि वो इरिवर्सिबल चेंजेस कर रहे हैं, जो क्लाक को टर्न बैक करने में मुश्किलात आएंगी, कानूनी दुश्वारियां आएंगी। लिहाजा मैंने यही गुजारिश की है सुप्रीम कोर्ट से एक अर्जी के थ्रू कि उनका हाथ रोका जाए कि आप वेट करो जब तक कि इस पर फाइनल कोई डिसीजन नहीं आता। गवर्नर सत्यपाल मलिक के मुशीर के शर्मा का कहना है कि मुनफरद कश्मीरी सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि इसकी शान रफ्ता बहाल की जा सके। J&K कल्चरल काउंसिल के एक वफ्द से मुलाकात के मौके पर के शर्मा ने ये बातें कही। इस वफ्द ने सकाफत से जुड़े तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की और दीगर कई मसाइल गवर्नर के मुशीर के सामने रखे। वफ्द में मारूफ मुफक्किर JR हसरत गुड्डा, नसार नसीम, गुलजार गनाई, नसरीन मोही, शौकत चहरी, गुलशन मदरानी, MM महबूब और शाहजहां डार शामिल हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल मीर तारिक अली ने JJ एक्ट और CPS के दीगर वेलफेयर प्रोग्रामों की अमलावरी का जायजा लिया। इस मौके पर DG ने कश्मीर डिवीजन में मौजूद चिल्ड्रन होम्स में फराहम की जा रही सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज का भी तफसीली जायजा लिया। मीर तारिक अली ने मुताल्लिकीन पर बहबूदी के प्रोग्राम और इससे मुंसलिक दीगर वेलफेयर प्रोग्रामों की अमलावरी के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिशें करने पर जोर दिया।
पुलिस में जिला सतह की भर्ती के सिलसिले में आज अनंतनाग की पुलिस लाइंस में भर्ती मुहिम का आगाज किया गया है। एसएसपी मोहम्मद अल्ताफ खान के मुताबिक हजारों लड़कों और लड़कियों ने अब तक फॉर्म भरे हैं। एसपीओज की इस भर्ती में मुहिम में अभी तक 3000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने कागजात दाखिल किए। उम्मीदवारों ने मुहिम का खैर मकदम किया और इसे खुशाइंद कदम करार दिया। जायद एप्लीकेशन रिसीव की है, 3200 कुछ एप्लीकेशन टोटली हमने रिसीव की, जिसमें काफ़ी तादाद में लड़कियां भी शामिल हैं। तो हमारी वैकेंसी सम 305 वैकेंसीज हैं। आज जैसा कि आपने भी देख लिया, आज उनका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट चल रहा था जो कि शुरू हो गया लड़कों से 1600 मीटर की रेस से। तो इसके बाद हमने लड़कों को ब्रीफ किया, लड़कियों को भी ब्रीफ किया, उनका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो है वो कैसे शेप अप होगा, उसके बाद क्या मरहले आएंगे इनकी अपॉइंटमेंट में तरतीब हुआ। वादी कश्मीर में ज़ाफ़रान की पैदावार को बढ़ावा देने और उसे बैरून ममालिक तक पहुंचाने के लिए सरकार ने दसो पामपुर में एशिया का सबसे बड़ा स्पाइस पार्क तामीर किया है। अब दुनिया में कहीं भी आला मयार का कश्मीरी ज़ाफ़रान दस्तयाब होगा। पेश हमारे नुमाइंदे सैयद मंजूर की खास रिपोर्ट। पिछले कई सालों से ज़ाफ़रान की पैदावार में गिरावट और इसकी फरोख्त को लेकर काश्तकार परेशान थे। ताहम अब ज़ाफ़रान के काश्तकारों को बड़ी राहत मिलने वाली है। हुकूमत ने दुसू पापुर में एशिया के सबसे बड़े स्पाइस पार्क का काम मुकम्मल किया है। इस पार्क में ज़ाफ़रान की बैनुल अक़वामी मेयार की पैकिंग होगी और कश्मीर के आला मेयार के ज़ाफ़रान की आलमी बाजारों तक रसाई होगी। ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन है यहाँ पे, इससे इस जो पैकिंग है इसमें बहुत तेज़ी आएगी इसके काम में, और जितनी भी प्रोडक्शन यहाँ पे आ जाएगी, जो यहाँ पे किसान आ जाएंगे अपना प्रोड्यूस लेके, उनको हम यहाँ पे पैकिंग करके देंगे। पहले यहाँ सैफरान बनता था, तो जो इनके खरीदने वाले होते थे वो ऐसे ही पॉलीथीन बैग बाकी चीज़ इस्तेमाल करके उनको लेते थे। यहाँ पे जब उनकी पैकिंग हो जाएगी सैफरान की इन बोटल्स में, तो इनका इस सैफरान का मियार बढ़ जाएगा और उनकी क्रॉप का भी मियार बढ़ जाएगा। इस स्पाइस पार्क को स्पेन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ज़ाफ़रान का पार्क करार दिया जा रहा है। ये पार्क जदीद आलात से लैस है। इस पार्क में ज़ाफ़रान की ग्रेडिंग लैब, ड्राइंग लैब, साइंटिफिक टेस्ट लैब के अलावा कोल्ड स्टोरेज भी दस्तयाब है। जो हमारा तो मेन टारगेट है सैफरान ग्रोवर को फायदा देना, ठीक है। जब हम सैफरान ग्रोवर को एक टेस्ट करके उसकी ओरिजिनलिटी सैफरान की शो करेंगे उस सर्टिफिकेट पे, ये ओरिजिनल है, प्योर है, उसका इसका पैरामीटर में वैल्यू ये है जो कि अंडर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स उसने कायम रखा है, तो उसको मार्केट में अपना मनचाहा दाम मिल सकता है। ड्रायर देख रहे हैं, ये हमारा ड्रायर जो इसमें सर एक ड्रायर में 48 ट्रेज है और एक ट्रे की कैपेसिटी है 200 ग्राम्स, और अप्रॉक्सीमेट हम 9 kg जो है एक ड्रायर में, जो आप ये देख रहे हैं, फॉर 40 मिनट्स हम स्टिग्मा को ड्राई कर सकते हैं। मेन पार्ट जो है हमारे इस स्पाइस पार्क का वो है ई ऑक्शन। ई ऑक्शन जैसा कि सभी जानते हैं कि ये पैन इंडिया होगा और हमारा किसान, हमारा ग्रोवर, हमारा प्रोड्यूसर कश्मीर में बैठ के पूरे हिंदुस्तान में अपना माल बेच सकेगा। तो ये मेन हाइलाइट्स हैं हमारे स्पाइस पार्क की, और ऑन द होल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है जिससे हमारे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। दुसू पापुर में स्पाइस पार्क बनने की वजह से यहाँ के बेरोजगार नौजवानों के लिए भी रोजगार के मौके पैदा होंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पापुर से सैयद मंजूर की रिपोर्ट। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर रघुलांगर ने आज अफसरान की एक मीटिंग में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के हवाले से किए गए इंतजामात को हतमी शक्ल दी। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों और पुलिस अफसरान ने शिरकत की। जिला पुलवामा में भी राष्ट्रीय एकता दिवस रवां माह की 31 तारीख को मनाया जाएगा। इस हवाले से जिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जेनेतू ने बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के सालाना इम्तहानात को अहसन तरीके से मुनक्कद कराने के लिए एक मीटिंग तलब की। इम्तहानात के हवाले से किए गए तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। SSP, ADC, सोपोर, CEO, बोर्ड के नुमाइंदे और दीगर आला अफसरान मौजूद थे।
CEO ने कहा कि कुल मिलाकर 16,900 तलबा इम्तिहानात में शरीक होने वाले हैं। 160 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं। DC ने हिदायत दी कि इन इम्तिहानात को अहसन तरीके से मुनक्कद कराने के लिए तमाम तरह की कोशिशों की जानी चाहिए। SRTC और मोटर व्हीकल हुक्काम को भी हिदायत दी गई कि वो तलबा के लिए ख़ास तौर से सोपोर और बारामूला के तलबा के लिए खुसूसी ट्रांसपोर्ट सर्विस का इंतज़ाम करें। ज़िला शोपियां में बोर्ड इम्तिहानात को अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए DC शोपियां की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। महकमे तालीम के अफसरान के अलावा तमाम तालीमी इदारों के सरबराहों ने इस जायजा मीटिंग में हिस्सा लिया। बोर्ड इम्तिहानात में शफाफियत लाने के लिए उठाए गए इक़दामात को अमली जामा पहनाने पर जोर दिया गया। ज़िला शोपियां में इम्तिहानी मराकज़ के इर्द गिर्द दफ़ा 144 नाफिज रहेगा। वलीसा के कई मकामात पर जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की मुबैना लापरवाही का मामला सामने आया है। लोगों का इल्जाम है कि बोर्ड इंतजामिया इम्तिहानात में धांधली और नकल की रोकथाम में नाकाम हो चुकी है। लोगों का कहना है कि इम्तिहान में पास होने के लिए गलत तरीक़ेकार बरकार लाना आने वाले मुआशरे के लिए सही नहीं है। लोग अब अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर कई खदशात का इजहार कर रहे हैं। लोगों ने इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि उन्हें इस बात का पूरा इल्म है कि इम्तिहानात में धांधली उरूज पर है, मगर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों का इल्जाम है कि इस हवाले से एक माफिया सरगर्म है। लोगों ने बोर्ड इंतजामिया से इस वबा को फौरन रोकने की अपील की है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से इस मसले में मुदाखलत की अपील की है। वाला सिर्फ बच्चा जिम्मेदार नहीं होता है, बल्कि उसके पेरेंट्स और उसके टीचर्स और उसका माशरा भी। मेहनत करने वाला स्टूडेंट्स होता है, वो उसके दिमाग में भी ये फितूर आता है कि नकल मेहनत करने से बेहतर है। मतलब ये एक बहुत बड़ी बीमारी है कि यहाँ पे नकल कराई जाती है। तो मेरी यही हाई अथॉरिटी से अपील है कि ये नकल बंद कर दी जाए। है कि हमारी ये जो नकल है इस नासूर को खत्म कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए हमारे नौजवान बच्चे जिनका एग्जाम आ रहा है वो भी साथ हैं, इनके पेरेंट्स भी साथ हैं, इनका स्टाफ भी साथ है। बांडीपुरा के बुनाकोट इलाके में एक राब्ता सड़क पिछले 27 साल से मुनक़ता है। सड़क को दोबारा जोड़ने के लिए एक छोटा सा पुल तामीर किया गया, लेकिन इस पुल का बाकी मादा काम भी 10 सालों से बंद पड़ा है। सड़क मुनक़ता होने की वजह से मकामी आबादी किन मुश्किलात से दूचार है, पेश है इस हवाले से एक खास रिपोर्ट। बांडीपुरा के बुनाकोट इलाके में हज्जामपुरा नामी बस्ती की ये राब्ता सड़क 1992 में आए एक तबाहकुन सैलाब की वजह से मुनक़ते हो गई थी। ये राब्ता सड़क न सिर्फ बुनाकोट की मुतादिद बस्तियों को गुजरबल, द्रमहामा और अहम शरीफ जैसे इलाकों से मिलाती थी, बल्कि इस सड़क की वजह से लोगों को कई इलाकों में जाने के लिए कम मुसाफिर तय करना पड़ती थी। मकामी लोगों के मुताबिक अगरचे महकमा RNB ने सड़क को दोबारा जोड़ने के लिए एक पुल तामीर किया, लेकिन महकमे की जानिब से 10 साल कबल शुरू किया गया ये तामीराती काम अधूरा छोड़ दिया गया और इस तरह से ये सड़क और पुल पिछले 27 साल से लावारिस हैं। मकामी लोगों का कहना था कि राब्ता सड़क दोबारा काबिले आमदोरफ्त बनाने के लिए अगरचे उन्होंने महकमा RNB के साथ साथ जिला इंतजामिया के नोटिस में ये मामला बार बार लाया, ताहम पिछले 27 बरसों से उन्हें सिर्फ यकीन दहानियां ही मिल रही हैं। ब्रोट बनोक यह कदल पत त्रोक बे तो तत पे गो कहें तो यह सुनमुत योकुन त्रथ खस्त कोर्मुत तो न MLA पृछा न मबल RMB पृछा गए RMB वालन दप तुम करो कम तेल सुनो यल सा नो तेल हल शेरी मज तो तमो त्रो यल यह रोड रलावा गुजर धर्म हूँ बनकोट नई पोरा छानमारा रलावा सारे रोड गाँव पानस सत गई 1999 में कुन सैलाबन यह गो छन ये अला गई मुतासर अम सस वन तक गवर्नमेंट बन अलबत् गवर्नमेंट यत वन अ बन 100 किलोमीटर तो 1,00,000 किलोमीटर मगर 99 पे वन तक 1 किलोमीटर बन गवर्नमेंटन कि गवर्नमेंट अपील करान यह दिन फुल फोर बनत पकान खल कहो मुझ कहीं गागरो मुझ पैदल पकान अगर बेमार आ सह नख दान पे पकन सह पान पकित की। अगर हमें ट्यूशन जाना पड़ता है, हमें सुबह सवेरे 6 बजे जाना पड़ता है और फिर यहाँ से वहाँ तक फिर हमें 2 किलोमीटर पैदल जाके हमें गाड़ी मिलती है, वो भी मतलब हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर एग्ज़ाम्स में भी हमें यह मतलब रोड ये 1992 फ्लड्स की वजह से ख़राब हुआ, तब से यहाँ तक कोई भी नहीं आया, इसकी मतलब ये कुछ भी नहीं हुआ इसका। और इस अहम मामले पर अगरचे न्यूज़ 18 उर्दू ने महकमा RNB से राब्ता कायम किया, ताहम
महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इस पूरे मामले से ही बेखबर नजर आए। उन्होंने इस पूरे मामले पर कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार किया। एक जानिब हजामपुरा की आबादी पिछले 27 साल से राब्ता सड़क से महरूम है, वहीं महकमा RNB की मामले से बेखबरी इस बात का अंदाजा देती है कि ये महकमा जमीनी सतह पर किस कदर मुतहर्रिक है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बानीपुरा से सईद की रिपोर्ट। आज धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार दिवाली से 2 दिन कबल मनाया जाता है। इस सिलसिले में जम्मू शहर के बाजारों में लोग भारी तादाद में खरीदारी करते नजर आए। खास तौर से खवातीन सोने और दीगर गहनों की खरीदारी करती दिखाई दी। उनका कहना था कि उन्हें इस खास त्यौहार पर खरीदारी करने में खुशी महसूस होती है। बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इसके घर में समृद्धि आती है, लक्ष्मी आती है, सब अच्छा होता है। अच्छे के लिए करते हैं, शुभ के लिए माना जाता है। हम भी बर्तन खरीदने आए हुए हैं। मार्केट में बहुत रश है, सारी दुकानों में बहुत रश पड़ा हुआ है इस वक्त बर्तन का। धनतेरस को लोग मोस्टली गोल्ड खरीदने आते हैं क्योंकि इसको लक्ष्मी के साथ लिंक किया जाता है और ये शुभ माना जाता है। दिवाली के 2 दिन पहले हम लोग गोल्ड खरीदते हैं ताकि घर में हमारे खुशहाली रहे और धन की और ज्यादा प्रगति हो। करगिल में जिला सेशन कोर्ट की जानिब से लोक अदालत का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जियाउल हक की सदारत में इस लोक अदालत का इनेकाद किया गया। 3 जजों पर मुश्तमिल इस लोक अदालत में बैंक रिकवरी और माल से मुताल्लिक 11 केसों से 4 केसों का मौके पर ही निपटारा किया गया। केंद्रीय विद्यालय करगिल ने अपने 4 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने इदारे की सालाना रिपोर्ट पेश की। गुज़श्ता साल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। मोहम्मद यूनुस वल्द अब्दुल रशीद साकिना बैटरी खारा भिलिसा चंद रोज से लापता हैं। यूनुस की उम्र 25 बरस है। बताया जाता है कि यूनुस को आखिरी मरतबा धर्मशाला किश्तवाड़ में देखा गया था। अगर किसी को यूनुस के बारे में कोई इल्मियत हो तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता किया जा सकता है। यूनुस दिमागी मर्ज का शिकार है। यूनुस के अहल खाना का कहना है कि उसके बारे में जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए बतौर इनाम दिया जाएगा। गुरेज के लोगों ने बीकन हुक्काम से मुतालबा किया कि दही नाले में तामीर किए गए पुल का बाकी मादा काम जल्द मुकम्मल किया जाए। जिद हुसैन नाले पर जेर तामीर पुल के काम में सूरत लाने की भी मांग की जा रही है। लोगों का कहना था कि कई सालों की ताखीर के बाद ही नाले पर पुल के काम में तामीराती काम मुकम्मल किया गया, ताहम अब बाकी मादा काम अंजाम देने में सुस्त रफ्तारी का मुजाहरा किया जा रहा है। लोगों का कहना था कि जेड खुशी नाले पर जेर तामीर पुल का काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी है। दही नाला में जो ब्रिज बनाया है ब्रिज तो कंप्लीट है, लेकिन दोनों साइड से जो बराई नहीं किया उन्होंने, और बराई लाके रास्ते में रखा है, उसमें बहुत मुश्किल है। और जेडकुसी वाले नाले में भी बहुत मुश्किल है, उधर भी पुल नहीं बन पाया, पूरा नहीं हो पाया है। अभी जो बेकन वाले काम कर रहे थे वो अभी सर्दी का मौसम आ गया, वो इधर से चले जाते हैं, ये फिर इसी साल ऐसे रह जाएगा तो गाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल होता है। नाले में गाड़ी फंसती है जहाँ से लोग फिर पैदल जाना पड़ता है उधर से। हमारा मुतालबा ये है सर कि वो दही नाला ब्रिज और जेडकुसी वाला ब्रिज बर्फ गिरने से पहले कंप्लीट हो जाए ताकि लोगों को मुश्किल